Okay, so we have started the recording. So today Okay. we are going to explain photoelectric effect by Planck's quantum theory. Right? In the last class, you've seen that Planck's quantum. We have learned Planck's quantum theory. उसके related जो भी problems वो हम लोगों ने किया है. And I think we have also learned why Planck's quantum theory was needed. Planck's quantum theory is all about dual nature of light, right? Hmm. So initially light was considered as electromagnetic wave, said wave character considered होता था, but that Yes. failed to explain certain incidents. जिसमें सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन उतना तो सिलेबस पे नहीं है, बट द नेक्स्ट जो इंसिडेंट एक्सप्लेन नहीं हुआ considering light as an electromagnetic wave, that is photoelectric effect, right? Apart from that हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम ये सब भी है, but we'll come to that later. Hydrogen का line spectrum we are going to learn later. But photoelectric effect, I think I have already explained what is photoelectric effect, right? Yes. That has been explained, and I have also explained why classical physics failed to explain the observations जो photoelectric effect में मिला, right? Hmm. What was the observation? पहला observation तो ये था कि अच्छा, तो यहाँ पे देखो. So let us recap a bit. तो यहाँ पे क्या है? This is a metal surface. What do we know about photoelectric effect? If a radiation or light of suitable frequency or wavelength strikes the metal surface, तो क्या होगा? Instantly electrons will be ejected. Yes. I hope it is clear to you. Yes, sir. That is one observation. There will be instant ejection of photoelectrons. So let's say this is the radiation or light which is striking the metal surface. There will be instant ejection of the photoelectron. Instant. That is the first point. Second observation क्या था? ये जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, राइट? Hmm. एंड थर्ड क्या था? जो फोटो करंट मेजर हो रहा था उस सर्किट से, that should be proportional to the intensity of the light. These are the three observations which we made in the last class, right? You can go through the Yes, sir. previous recording and you can have a look. Now we are going to explain photoelectric effect by Planck's quantum theory. That was the purpose of giving Planck's theory, right? So that we can explain these incidents. That is why it Hmm. appeared, right? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन. तो देखो सब ठीक से. तो ये मेटल सरफेस है. सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटल का लूज इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर लूजली बाउंड ऑन द मेटल सरफेस. तो अगर कोई Okay. रेडिएशन और लाइट फॉल्स अपॉन दिस सरफेस तो क्या होगा? तो रेडिएशन मतलब देयर आर फोटॉन्स हियर, राइट? द रेडिएशन Yes. कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स. तो अगर कोई फोटोन is striking this electron and supply the amount of energy required to eject the electron, वो क्या था? Do you know what is the amount of energy required to eject the electron? The electron is bound by the metal surface. कुछ तो force of attraction है, loosely bound है, but there is some force of attraction. So if you have to Yes. knock out the electron, you have to supply some energy. Yes. And the minimum energy which is required to eject a photoelectron from the metal surface is known as work function. Minimum energy. What is it known Minimum as? minimum energy which is required to eject this photoelectron from the metal surface is known as work function. Okay. Work function of the metal. ठीक है, जिसका symbol you can write phi naught or w naught. This is work function, right? Which is the minimum energy required to eject the photoelectron. Okay. तो let us assume कि कोई ना कोई फोटोन तो ये मिनिमम एनर्जी सप्लाई करेगा. देयर विल बी सम फोटोन व्हिच विल सप्लाई दिस एनर्जी for Hmm. the work function. So let's say there is a photon which strikes the electron and supply this energy, and the frequency of the radiation is nu naught and the wavelength of the radiation is lambda naught. तो इस frequency and wavelength का कोई photon exactly supplies the minimum energy which is required to eject the photoelectron. Do you agree? तो इन Yes. दैट कंटेक्स्ट कैन आई से दैट तो फिर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और एच सी बाई लैम्डा नॉट. बोल सकता हूँ Uh. Yes. Yes. व्हाट आई सेड.
The photon supplies the minimum energy required, which is nothing but the work function, right? Hmm. तो फिर phi naught और work function is equal to h nu naught और hc by lambda naught. Yes. तो अगर phi naught work function है, ये this is what this is called threshold frequency and this will be called threshold wavelength. Okay, so all these are Okay. boundary conditions. These are So all this is boundary only for conditions. work function. This is only for work function. So consider work function as an energy of photon which supplies the minimum energy required, right? Yes, sir. तो फिर उसका corresponding frequency and wavelength will be called threshold frequency and threshold wavelength. Okay. So if work function is the minimum energy required, what do you think? What about the so this frequency should be the threshold frequency should be the minimum frequency required because we know that energy of photon and frequency is directly proportional. Yes. यहाँ से देख सकते हो. So since they are Hmm. directly proportional, so can I say that threshold frequency is the minimum frequency required to eject photoelectron, Yes, sir. and that is inversely proportional to wavelength. So threshold wavelength is the maximum wavelength required for the same. Yes, sir. ठीक है ना? Hmm. So I hope you understood what is work function, what is threshold frequency, and what is threshold wavelength. Yes, sir. Now let us come back to this plot. So there is a glass tube. There are two electrodes, positive and negative. So this is cathode, this is anode. This anode can be called collector as well because that collects the electrons which are coming out of the cathode, right? This is cathode, or you can say emitter because that emits the electrons. Okay. ठीक है. So let's say यहाँ पे कोई radiation of suitable frequency nu that is falling upon this metal surface जिसका मतलब the threshold this frequency is greater than the threshold frequency. What is the condition of ejecting a photoelectron? पहला condition तो ये जो photon यहाँ पे strike करेगा that must have energy greater than is equal to work function. Hmm. Photon का energy should be greater than is equal to work function. जो frequency that must be greater than is equal to threshold frequency and जो lambda that must be less than is equal to threshold wavelength. So all three conditions have to be met or only one? नहीं नहीं, अगर एक होगा तो by default बाकी हो जाएगा ना. Okay. ऑल आर कनेक्टेड, राइट? तो अगर एक सेट करोगे तो बाकी तो बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है. Okay. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स. अगर एनर्जी के टर्म पे बोलेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू वेव फंक्शन. अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म पे बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर लैम्डा के टर्म पे बोलेंगे तो लैम्डा मस्ट बी less than is equal to the threshold wavelength. So this is the conditions of ejecting a photoelectron, right? Yes. चलो, तो सिंपल सा पॉइंट है. अगर फोटोन का एनर्जी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फोटोन का एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा एंड इमीडिएटली द इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड. देयर शुड नॉट बी एनी टाइम लैग बिकॉज द फोटोन स्ट्राइक्स एंड सप्लाई द एनर्जी एट वंस. Hmm. आई होप इट इज क्लियर टू यू. that Yes, sir. explains the first observation, right? Okay. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पैरामीटर. वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी Hmm. टोल्ड देम, राइट? नाउ यू शुड Yes, sir. नो ये जो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, these are all characteristics of metal. These are all characteristics of metal, right? Because if you change the metal, ये वर्क फंक्शन चेंज होगा तो फिर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा. तो ये Okay. रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. हर एक मेटल के लिए इसका वैल्यू स्पेसिफिक होता है. These are the characteristics of the metal. मेटल के Hmm. साथ एसोसिएटेड होगा दिस वैल्यूज. ठीक है? Yes, If you sir. change the metal, these values will change. Okay, and I think I have already explained you the conditions as well जो यहाँ पे लिखा हुआ है. But there is one thing, यहाँ पे एक नया टर्म है which is called stopping potential. पता है क्या है stopping potential?
No, sir. पता है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे सिंस द लाइट स्ट्राइक्स, तो लाइट के लिए, लाइट मतलब फोटोन का जो एक्सेस एनर्जी होगा वर्क फंक्शन के बाद, वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होगा, राइट? Hmm. राइट, देयर इज सर्टेन वोल्टेज. इस वोल्टेज पे द वोल्टेज इज सेट इन अ वे जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि photo current is generated. That means these electrons which are getting kinetic energy of because of the photon is reaching to the other side, that is collector, and current generate हो रहा है, right? Now what will happen if I start reducing this potential? अगर मैं इसको कम करते जाऊं, now you should know कि when you apply some potential difference on a charge, तो उसके लिए उसको एक kinetic energy मिलता है, पता है कि नहीं? Yes, sir. सो इन द सेम कंटेक्स्ट कैन आई से, अगर मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस कम करते जाऊं तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, Hmm. राइट? सो दिस इलेक्ट्रॉन्स का Directly काइनेटिक, proportional. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी सेट इन ए काइनेटिक एनर्जी. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड. तो फिर क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, Yes. ठीक है? बट एट सर्टेन पॉइंट क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. आई हैव, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. वो कम करते 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 क्या होगा, जब ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, लेट्स से यू आर अप्लाइंग प्लस 10 वोल्ट, उसको तुम -5 -6 कर दियो, तो कम करते करते क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा. एट सर्टेन टाइम द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो, राइट? Can it become negative or not? ना, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट I have to set the voltage in some negative value so that the kinetic energy of the electron becomes zero, right? Yes. समझ में आया कि नहीं? तो Yes, sir. that value of potential, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, that will be called stopping potential. That means it stops the electrons to generate the current, right? What is it called? Stopping? It is stopping the electrons from Okay. moving, from motion. That means it is stopping the current. Yes, sir. है ना? तो this is simply the voltage at which the electrons are just ejected, but कोई kinetic energy नहीं होगा. And if there is no kinetic energy, no electron will reach to the other side at collector. तो फिर photo current भी generate नहीं होगा. Is it clear? What is photocurrent? Photo current is the current which is generated because of the photoelectric effect, Okay. which is measured in this ammeter here. Okay. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है? The electrons are getting ejected from the metal surface. You cannot see ना. That is why यहाँ पे ये सेटअप किया गया है. अगर ये फोटो करंट जनरेट हो रहा है तो पता चल रहा है कि the electrons are ejected from this surface of the metal, right? And इधर आ Yes. रहा है. Okay. So let us understand stopping potential. I hope you understood. So let us try to explain the observations of photoelectric effect with the help of Planck's quantum theory. So that was explained by Einstein, none other than Einstein, and this is called Einstein's photoelectric equation. ठीक है? तो एज पर आइंस्टाइन क्या होगा, अगर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उसके फोटोन का जो एक्सेस एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Yes. राइट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट शुड बी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. इज इट क्लियर? दैट इज द Yes, sir. बेसिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो अब तुम इसको फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर कर सकते हो. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. सो दैट कैन बी वन इक्वेशन. इसको तुम वेवलेंथ के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी hc by lambda and this should be hc by lambda naught. So I can take hc कॉमन, तो फिर ये आ जाएगा Hmm. एक्सप्रेशन. और तुम इन टर्म्स ऑफ 12,400 भी कर सकते हो. एनर्जी ऑफ फोटोन But इज in 12,000. angstrom, right? हाँ, तो लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में लिख, आई हैव ऑलरेडी रिटन. तो यहाँ पे लैम्डा Okay. एंगस्ट्रॉम में होगा, लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में होगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा, राइट? Okay. तो देखो, सो फार देयर इज एनी डाउट? No, sir. So this explains everything. As you can see, what is the second observation of photoelectric effect? कि kinetic energy of electron is proportional to the frequency of the radiation. तो यहाँ पे देखो, so can you see this equation? तो यहाँ पे
न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक मेटल. H is also constant. So can I say अगर frequency of the radiation increases तो kinetic energy भी increase हो रहा है फिर by this relation. Yes, sir. So that also explains the second observation that kinetic energy of electron is proportional to the frequency of radiation. Right? It's inversely proportional to wavelength, right? हाँ तो फिर वही हो रहा है. मतलब Hmm. आई एम टेलिंग यू क्वालिटेटिवली कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. दैट इज हाउ आई एम टेलिंग यू. Okay. And so for the characteristics of metal, so for which one will have higher work, like how will I determine, like do सो विल lower कम टू दैट. elements? विल Okay. कम टू दैट. किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा किसका कम होगा विल ऑल्सो कम टू दैट. ओके. तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिफाइन आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड. लेट्स से Yes. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. तो लेट्स से यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब है. ठीक है. दिस इज द एमिटर एंड दिस इज द कलेक्टर. ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड ये कलेक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये the radiation strikes the metal surface and since the energy of the photon is transferred to this electron they will eject from the surface with some kinetic energy. Right? यहाँ पे Yes. कुछ V वोल्ट सेट हुआ है बैटरी का वोल्टेज जिसमें ये करंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे एमीटर. ठीक है. नाउ इफ यू स्टार्ट रिड्यूसिंग दिस पोटेंशियल what will happen? This kinetic energy will start reducing. होगा ना? Can you repeat the statement, please? अगर तुम ये वोल्टेज कम करते जाओगे बैटरी का तो फिर ये काइनेटिक Hmm. एनर्जी कम होता जाएगा. Yes. दैट सम वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. Hmm. तो दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड stopping potential. So Stopping the potential. stopping potential is the minimum retarding voltage applied to the collector plate that just stops the photoelectric current. Right? तो कैन आई से तुम्हें उतना ही वोल्टेज अप्लाई करना होगा जिससे इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था दैट विल बिकम जीरो. So does stopping potential always have to be negative? राइट. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव. ठीक है ना? Okay. तो अगर ये तुम इलेक्ट्रॉन पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो एज पर दैट कैन आई से दैट E into V naught is nothing but the kinetic energy. क्योंकि लेट्स से काइनेटिक एनर्जी था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम इसको जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे तुम्हें 10 माइनस 10 वोल्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ना. Hmm. सो टेक्निकली ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है दैट ई वी नॉट is equal to kinetic energy of electron which is basically EP minus work function, energy of photon minus work function. So that is also your equation to calculate stopping potential. I hope it is clear. Yes, sir. ठीक है. So these are your terms and equations. Now let us explain the observations again. The first observation was immediate ejection of photoelectrons when the light strikes the metal surface. And you can see the photon, if the photon transfers the energy at once which is more than equal to work function तो फिर ये electrons immediately eject हो जाएगा without any time lag. Why? Right? तो photon पूरा energy एक बार पे transfer कर रहा है ना which is necessary to get ejected. Okay. जितना energy चाहिए वो एक बार में photon is transferring to the electron so that the electron Okay. can eject. समझ में आया कि नहीं? In a continuous manner. नहीं. फोटोन के पास जो कंटिन्यूअस तो होता है जब वेव फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होता है. फोटोन के पास जो फोटोन इज ए पार्टिकल राइट. Hmm. तो उसके पास जो एनर्जी है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है. एक फोटोन से ही इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है ना. वो एक फोटोन का Yes. ही पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पास एंड द इलेक्ट्रॉन इज इमीडिएटली इजेक्टेड. Yes, sir. पहला ऑब्जर्वेशन तो हो गया एक्सप्लेन. दूसरा ऑब्जर्वेशन भी एक्सप्लेन हो गया. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट फ्रॉम द आइंस्टाइंस इक्वेशन. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. राइट?
Still the third Yes. observation is remaining to explain. Yes, what is the third observation? ये जो photo current that is proportional to the intensity. Small I is the photo current, capital I is the intensity, right? तो इसको कैसे explain करें? तो first of us we need to know what is intensity. इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? दिस इज सिंपली नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. ठीक है, एक सेकेंड पे 1 यूनिट सरफेस एरिया पे कितना फोटोन स्ट्राइक कर रहा है. So let's say this is 1 unit surface area, and for the given intensity, the two photons are striking in this region and in 1 second. तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा if the two Hmm. photons strike. Now let us double the intensity. तो अगर if you double the intensity, इसका मतलब क्या होगा? Now 4 photons will strike instead of 2. Yes. तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा. Is it clear? Yes, sir. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जे इफ दैट इज इंक्रीजिंग, तो मतलब करंट भी इंक्रीज होगा. Hmm. So I can connect the photo current with the intensity. So that is, this is directly proportional. Is it clear or not? Number of photons emitted will be number of protons. One second. Number of photons that I एक emitted. सेकेंड पे 1 यूनिट सरफेस एरिया पे जितना फोटोन विल स्ट्राइक उतना ही इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के आएगा. Hmm. तो जितना ज्यादा Okay, फोटोन understood. स्ट्राइक करेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, तो फिर करंट भी उतना ही ज्यादा होगा. Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Yes, sir. चलो सही है. Can you see the screen? Yes, sir. So what we will do, we'll draw kinetic energy versus frequency. ये plot draw करना है. तो उसके लिए what is the relation आई है और equation आई है, that kinetic energy is equal to h nu minus w naught, right? Hmm. तो ये y That एक्सिस पे प्लॉट करना है. दिस यू हैव टू प्लॉट इन x एक्सिस. तो अगर मैं इस इक्वेशन पे काइनेटिक एनर्जी को y से एंड फ्रीक्वेंसी को x से रिप्लेस करूं, तो यू सी दैट दिस लुक्स लाइक mx y is equal to mx minus c प्लॉट, राइट? yes, तो मतलब linear. स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है बट द इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज नेगेटिव. क्लियर? Yes. y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज नेगेटिव, है ना? So that is how I have drawn. You can see this is a positive slope. So let's say I have drawn two lines because of two metals. मैं दो मेटल के लिए ये ड्रॉ किया हूँ. One is for red line, one is yellow line. तो what do you see? तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव वाला पार्ट मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? दैट इज नॉट रियल. How do we know it is negative intercept? हाउ? How do we determine the intercept? सिंपली एक्सट्रापोलेट द लाइन टू वाई एक्सिस. यहाँ पे काट करेगा, तो दिस इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट, Okay. है ना? बट द नेगेटिव पार्ट, द लाइन का जो नेगेटिव पार्ट वो डॉटेड लाइन से दिखाया है सिंस दिस इज नॉट रियल. काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव. आई होप इट इज क्लियर. Yes. ठीक है. सो आई हैव ड्रॉन प्लॉट्स फॉर टू मेटल्स, दैट इज व्हाई यू हैव टू लाइंस हियर. दोनों का पैटर्न तो सेम ही होगा. नाउ माय Hmm. क्वेश्चन इज, अच्छा आल्सो यू कैन सी हियर What is x-axis, sir? एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, Okay. फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का. Okay. So slope will give stopping velocity. तो यहाँ पे देखो, एट दिस पॉइंट ये रेड लाइन पे, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है. मतलब फॉर दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है. सो दिस मस्ट बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल है. Yes. एंड यहाँ पे दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बी. यू एग्री? Yes. नाउ Yes. आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. लेट्स से ये जो दोनों मेटल मैंने लिया है, वन ऑफ देम इज लिथियम, अदर इज सोडियम.
तुम्हें डिसाइड करना है कि ए एंड बी में से विच वन इज लिथियम एंड विच वन इज सोडियम. देयर आर टू मेटल्स ए एंड बी, मतलब हाँ, सोडियम एंड लिथियम, दिस टू मेटल्स are denoted by A and B. But from this graph, you have to predict that A and B में से कौन lithium है and कौन sodium. That is the question. तो कैसे decide Okay. करें? That is the question you are asking, right? The kinetic energy will be higher for No. sodium. देखो, let's say lithium and sodium. इन दोनों में से किसका साइज छोटा है and who is larger? Sodium is larger than तो lithium. you can see सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, that is further from, मतलब न्यूक्लियस से ये ज्यादा दूर है. That is Hmm. more distant from the nucleus. तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा ना, इसे दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर लूज कंपेयर टू लिथियम. Yes. तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, उसके लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा. Hmm. करेक्ट. Yes, sir. तो साइज जित और लिथियम से क्या होगा, लिथियम पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड Hmm. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा. एंड So, ये can जो you give definition of ionization energy? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू knock out the electron from the outermost shell of atom in its gaseous and isolated state. Okay. ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स, बट यहाँ पे बस समझाने के लिए आई एम टेलिंग यू. सो साइज छोटा होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, मतलब आई ज्यादा होगा. Yes. और वर्क फंक्शन इज जस्ट लाइक आई. तो सोडियम के लिए द सरफेस इलेक्ट्रॉन आर मोर लूज, तो कम एनर्जी चाहिए होगा उसको निकालने के लिए. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो फिर वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, सोडियम एंड लिथियम में? Work function, since kinetic energy is higher for lithium. काइनेटिक एनर्जी, मतलब व्हाई आर यू गोइंग टू काइनेटिक एनर्जी? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्क फंक्शन. यू हैव टू थिंक कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से तुम इजीली निकाल सकते हो, लिथियम से या Sodium. सोडियम से? सोडियम से. तो फिर लिथियम के लिए क्या होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए. Okay. तो साइज जितना छोटा होगा वर्क फंक्शन उतना ज्यादा होता है, राइट? एंड वर्क Okay. फंक्शन आई, दे आर प्रोपोर्शनल. अगर वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा. Hmm. तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा दैट मस्ट बी द लिथियम, Yes. व्हिच इज बी इन दिस केस. Yes. डू यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. राइट. तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट हुआ. दूसरा जो प्लॉट है दैट इज फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल. ठीक है, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, ये वाला प्लॉट है. वाई Yes, एक्सिस sir. पे फोटो करंट एंड एक्स एक्सिस पे रिटार्डिंग पोटेंशियल. तो एक चीज देखो, अगर कैथोड से एनोड तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता है तो करंट विल बी मैक्सिमम. Yes. ठीक है. नाउ लेट्स से फ्रॉम दिस वोल्टेज करंट इज सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहा है. तो उसके बाद तुम जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करो करंट विल बी सैचुरेटेड, ये सेम रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? Okay. फ्रॉम दिस वोल्टेज द करंट इज सैचुरेटेड. तो इसके बाद से तुम जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करो current will remain saturated and maximum constant रहेगा. Hmm. But if you start reducing the potential from this point, अगर इधर से इधर आओगे तो now the kinetic energy of the electron will start reducing. ठीक है, तो Why धीरे does it? धीरे. Why doesn't it happen from the y-axis point? सॉरी, Why doesn't the retardation occur from the y-axis point and y before it? अब तुम्हें जैसा प्लॉट करने के लिए बोलेगा तुम वैसे ही करोगे ना. जो पहले लिखा जाता है उसको ही वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है. दैट इज द कन्वेंशन. Okay. अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल पहले लिखा जाता है तो उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है. Okay. ठीक है. तो फ्रॉम दिस पॉइंट
तुम जितना वोल्टेज कम करते जाओगे, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कीप रिड्यूसिंग, तो धीरे धीरे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द अदर साइड विल कीप डिक्रीजिंग एज वेल, तो करंट कम होता जाएगा, हम्म, right? And at certain point at this potential you can see this is a negative potential, क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा एंड करंट विल स्टॉप, तो करंट भी जीरो हो जाएगा, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। yes sir, understood. Is there any doubt? No sir. So let me give you a problem. Can you read the question loud? The stopping potential for a metal with work function 2.5 electron volt when light of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz falls on it is तो ये वर्क फंक्शन है, frequency of the radiation is 8 into 10 to the power 14 hertz and Planck's constant का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। hmm, निकालना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तुम्हें V जीरो निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला yes, क्या है हमारे पास, ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, minus yes, ठीक है। hmm, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट, नॉट इन टर्म्स ऑफ एसआई, कूलॉम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन यूनिट चार्ज, तो मुझे यहाँ पे फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही लेना है इन द सेम फॉर्मेट, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लेना है तो क्या करना है, अगर तुम एच न्यू करोगे तो ये जूल पे आएगा, एच का वैल्यू एसआई पे है, फ्रीक्वेंसी भी एसआई है, तो ये जूल पे आएगा, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट hmm, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या क्या करना है फिर, uh, divide डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द 1.6. पावर माइनस 19, तो ये करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा, इज इट क्लियर और नॉट। Yes sir, and then we तो फिर just हम क्या करेंगे, subtract. ई वी नॉट इज इक्वल टू इसका जो भी वैल्यू आ रहा है इंटू ई वी, यही है ना। Yes, yes sir. और फिर यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू कैन गेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे उसका वही मैग्नीट्यूड आएगा बट यूनिट विल बी वोल्ट, Okay. राइट। देखो समझ में आया कि नहीं, Yes sir. Is it necessary to cancel or मतलब तुम्हें तो वी नॉट निकालना है ना, तो ई क्या करेगा, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वन यूनिट चार्ज, okay? यू डिडंट गेट इट। Yes, understood. So this might be the last problem for today. Can you solve this problem? Okay. So can you read the question? Maximum kinetic energy of a mated photoelectron when photons of wavelength 310 nanometers falls on a metal is 3 electron volts. So Calculate. kinetic energy is given, right? Which is equal to 3 electron volt. And what is the expression of kinetic energy? That must be energy of photon minus work function. Do you Yes. agree? Yes, sir. तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी ऑफ फोटोन। We convert this to angstrom first. हाँ तो थ्री, तो लैम्डा क्या होगा, 310 नैनोमीटर, मतलब कितना एंगस्ट्रॉम है,
1 angstrom is 10 to the power minus 10 and 1 into 10, 3100. So this is the angstrom, नैनोमीटर से angstrom कन्वर्ट करो. अब So क्या that करना है? will be 4. So So this 12,400 divided right. by So 1,300. energy of photon is equal to 12,400 in electron volt. So this is 4 electron volt. And work function कुछ दिया हुआ है? नहीं, वर्क Work फंक्शन निकालना function. है, राइट? So दिस work इज 4 function will इलेक्ट्रॉन be, वोल्ट, तो मुझे ये निकालना है. तो वर्क फंक्शन क्या रहा है? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, yes. तो एक तो हो गया Now we can थ्रेशोल्ड. अब convert that. Do we have थ्रेशोल्ड to convert that फ्रीक्वेंसी into एंड joules? नहीं, पहले नहीं करूंगा ना, पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लो. तो थ्रेशोल्ड Okay. वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. Yes. यस और नो? Yes, sir. तो ये मिल जाएगा Hmm. एंगस्ट्रॉम में. अब तुम इसको मीटर पे कन्वर्ट करो. अगर वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी लेना है, निकालना है, तो मुझे ये ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा. 10 to the power minus 10 मीटर हो गया. नाउ Yes. यू कैन गेट द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? c बाई लैम्डा. Lambda. तो c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू 3 द पावर into. 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, Yes. एंड लैम्डा का ये मीटर वाला वैल्यू पुट करो, यू विल गेट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Yes, sir. तो आई विल फिनिश द क्लास हियर. आई विल नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है, विच इज बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, नाउ वी आर एट द सेंटर ऑफ दिस चैप्टर, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. इसका बहुत प्रॉब्लम होता है, इसका कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से, रदरफोर्ड मॉडल इज आल्सो सिग्निफिकेंट क्योंकि दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल. बट बोर्ड्स मॉडल से पहले तुम्हें हाइड्रोजन एटम को कुछ तो satisfactory explanation मिलेगा. Not all, but to some extent. One electron system. Hydrogen atom is a one electron system. So Bohr's model can explain at least some of the characteristics of any one electron system, not multi-electronic system. ठीक है, तो next class Okay. we'll start with Bohr's model of atom. Let us finish it here. Okay.